قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، لفظ ماں لفظ ہی ایسا ہے کہ بولیں تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ماں ایک ایسا عظیم رشتہ جس کی اگر آپ پیسوں میں قیمت لگانا چاہیں تو ساری دنیا دے کے بھی نہیں لگا سکتے۔ اس ماں کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ پچھلے جمعے سے میں والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی مسلمان معاشرے میں نہیں رہ رہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہر طرف سے دردناک قسم کی ویڈیوز ہی سامنے آتی ہیں۔ بوڑھا بزرگ جس کے 9 بیٹے، اللہ اکبر، 1 2 بھی نہیں، 9 بیٹے پالا پوسا پڑھایا، لمبی لمبی ڈگریاں دلوائیں، اور بابا غریب بھی نہیں ہے، 100 ایکڑ زمین کا بھی مالک، اور اب 9 کے 9 ہی اس ایک بوڑھے بابے کو نہیں پال رہے۔ وہ دکھی ہے، وہ رو رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے۔ وہ ماں جس نے 5 بیٹوں کو PhD تک کروائی، وہ ماں اولڈ ہوم میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے کہ 3 بیٹے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، لیکن والدہ کو جی ہماری بیویاں نہیں مانتی۔ بیوی کون ہوتی ہے؟ ماں کی خدمت کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کس نے کہا؟ اگر مسلمان ہو تو پھر اسلام سے پوچھو نا کہ کیا بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کے لیے بیوی کی اجازت ہونی چاہیے؟ بیٹے کے گھر میں والدہ رہے تو یہ بیوی کی اجازت کے ساتھ رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھی مثالیں بھی ہیں، یہی نہ سمجھے کہ ہمارے معاشرے میں سارے ہی ایسے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اور کیسے کیسے اچھے ہیں۔ میں نے درس دیا لاہور میں تو ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی اچھی مثالیں بھی ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے، مجھے بھی بتائیں۔ کہنے لگے جی ایک بیٹا ایسا فرما بردار بھی اس دنیا میں ہے کہ والد گرامی 15 سال ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور جس دن سے والد دنیا سے گیا ہے بیٹا ہر روز رات کو والدہ کے کمرے میں سوتا ہے کہ میری ماں جب چاہے خدمت کے لیے بلائے گی تو میں حاضر ہوں گا۔ 15 سال ہو گئے ہیں بیٹے کو، اور فرما برداری یہاں تک ہے کہ سارے دوستوں کی محفل ہے، کھانا ہوٹل میں تیار ہے، کھانے کے لیے لقمہ ابھی توڑنا باقی ہے تو والدہ کا فون آ گیا، بیٹا کدھر ہو؟ تو بیٹے نے دوستوں سے معذرت کی، بل دیا ہوٹل کا، کھانا تم کھاؤ، میری ماں کا آرڈر آ گیا، میں جا رہا ہوں۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں۔ کہتے ہیں کراچی سے لاہور جہاز کے ذریعے میرے بیٹے کی شادی پر آئے، ایئرپورٹ سے اترے اور سامنے ہی ایک شادی ہال تھا جہاں بیٹے کی تقریب تھی، وہاں آئے، گلے ملے، بیٹے کو جو تحفہ دینا تھا دیا، اور معذرت کر کے کہ میری والدہ نے مجھے چھٹی اتنی سی دی ہے کہ میں نے اسی جہاز سے واپس کراچی بھی جانا ہے۔ یا اللہ ایسے بیٹے تو سب کو عطا فرما، اللہ ایسے فرما بردار خدمت گزار بیٹے تو ہر ماں کو عطا فرما۔ تو پھر وہ بد قسمت کون ہے جو ماں کو اتنا مارتے ہیں کہ ڈنڈے توڑ چھوڑتے ہیں، والد کو اتنا مارتے ہیں کہ ڈنڈے توڑ دیے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا ناسور ہیں۔ اللہ ایسے بیٹوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں ہم نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حملتہ امہ کرہا، تمہاری والدہ نے 9 مہینے جب تمہارا عمل تھا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اندر ایڑی مارتا ہے تو ماں کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ 9 ماہ سنبھالنا یہ ماں ہی جانتی ہے کہ کس تکلیف میں اس نے اس کو سنبھالا ہے۔
وَوَضْعُهُ كُرْهًا، اور جس وقت ماں نے اس کو جنم دیا اس وقت جو ماں نے تکلیف اٹھائی، اگر خامد حضرات کو وہ تکلیفیں سنا دی جائیں تو یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھایا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے آخری، اور پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے، مفتی صاحب میں نے اپنی بوڑھی والدہ کو کندھوں پر سوار کر کے پورا حج کرایا ہے اور آج یہ آخری طواف کرا کے حج مکمل ہو رہا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو مفتی صاحب کا جواب تھا، پتر ابھی تیری پیدائش پر ماں کی جو چیخیں نکلی تھی ایک چیخ کا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا، تم ساری زندگی کے بدلے اتارنے کی بات کرتے ہو۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے ماں حمل سے لے کر بچے کو دودھ پلانے تک 2.5 سال تک محنت اور مشقت کا شکار رہتی ہے ماں، پھر جا کر ہم پلے، پھر جا کر ہم بڑے، پھر جا کر ہم چلنے کے قابل ہوئے، اور پھر ابو نے انگلی سے پکڑا اور بڑا ٹہلتا ٹہلتا بازار میں جا رہا، مینو اللہ نے پتر دیتا ہے۔ وہ ساری مشقت، ساری محنت، ساری تکلیفیں کس نے اٹھائی ہیں؟ ماں نے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور جو نیک بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب بچہ جوان ہو گیا، 40 سال کی عمر کو ہو گیا، تو پھر وہ دعائیں مانگتا ہے، پھر وہ کہتا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ 40 سال کی عمر کو اب باپ اور ماں بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ دعائیں کرتا، اللہ مجھے اپنا شکر گزار بننے کی توفیق دے دے، اللہ تو نے مجھ پر بھی اور میرے والدین پر بڑے انعام کیے ہیں، اللہ مجھے شکر کرنے کا، ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اور شکر کے ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ جو مجھے اولاد دی ہے اس کو بھی نیک بنا دے، خود تو میں اپنے والدین کی خدمت کاری رہا ہوں، اللہ جو میری اولاد ہے اس کو بھی نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، اللہ میں تم سے توبہ کر رہا ہوں، وانی من المسلمین، اللہ میں ہوں بھی مسلمانوں میں سے۔ تو یہ ہیں فرما بردار بیٹے جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں ایک عجیب و غریب قسم کا جذبہ رکھنے والی، اگرچہ آج کل چائنیز مائیں بھی آ گئی ہیں، ہاں جی ہمارے معاشرے میں وہ چائنیز روبوٹ مائیں بھی آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ ان ماؤں کی بات میں نہیں کر رہا جو چائنیز ہیں، سمجھتے ہو چائنیز کو ہوتی ہے؟ انجائی تو کرو، کس طرح کی ہوتی چائنیز مائیں؟ وہ 8 بچوں کو چھوڑ کر چائنیز ماں اگلے خامد کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور بچیاں عدالت میں داڑے مار مار کے رو رہی ہیں کہ ماں نہ جا، اور ماں نے اگر نہیں مینوں تو سچا پیار ہی نہیں ملیا، میں تو اب نئے عاشق کے ساتھ جاؤں گا۔ ان ماؤں کی بات نہیں ہو رہی، یہ گندی بدتمیز قسم کی بد کردار عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مومن ماؤں کی بات ہو رہی ہے کہ مومن ماں ہو تو اس کے جذبے کا کیا کہنا، مومن ماں ہو تو اللہ کی اس پر رحمتوں کا کیا کہنے۔ اور وہ مائیں ہوتی کیسی ہیں؟ وہ نہیں جو 8 بچوں کو چھوڑ کر تو نئے عاشق کے ساتھ بھاگ جائے، وہ ماں کی بات نہیں ہو رہی، مومن ماں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہیں؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک اماں آ گئی، 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی اس کے ساتھ، اور مجھے آ کر کہتی ہیں ام المومنین بھوکھی ہوں، غریب خاتون کو کچھ کھانے کو دے۔ اماں جی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا تو صرف 1 کھجور ملی، کائنات کے سردار کے گھر میں 1 کھجور دستیاب ہے صرف۔ میں نے کہا لو بہن یہ ایک ہی ہے اس وقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ماں ہے مومن ماں، بھوکی ماں بھی ہے، بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، ماں نے کھجور آدھی آدھی کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود بھوکی ہی السلام علیکم کر کے چلی گئی۔ اس کو کہتے ہیں ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، میں نے بتایا اللہ کے نبی ایک ماں آئی تھی، ماں، 2 بچیاں بھی بھوکی تھی، مجھے 1 کھجور گھر میں ملی، میں نے وہی دی، اس نے اپنے منہ میں نہیں ڈالی، خود نہیں کھائی، اپنی بھوکی بچیوں کو کھلا کر اور سلام کر کے چلی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، اللہ جس کو بیٹیاں دے اور وہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ
मोमिन मां बनकर उनकी परवरिश करे, कुन्न लहू सित्र मिनन्नार, ये बच्चियां क़यामत वाले दिन जहन्नम की डाल बन जाएंगी, मां को जन्नत में ले जाएंगी, जन्नत में नहीं जाने देंगी। अल्लाह हम सबको ऐसी माँ की तौफीक अता फरमाए। हमारे घरों में जो माएँ हैं उनको ऐसी माएँ बनने की तौफीक दे। माँ तो माँ ही होती है, जानवरों की माँ भी हो तो अल्लाह ने जो शफकत और मोहब्बत दी है उसके दिल में भी डाली है। इंसानों की माएँ तो हैं ही, जानवरों की माएँ भी उस मोहब्बत से आशना हैं जो अल्लाह ने उनके दिलों में रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक चिड़िया एक सहाबी के सर के ऊपर चक्कर काट के चां 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 बेचारी मिन्नतें कर रही है। आपने फरमाया मन फजाहाद ही बेवलदिहा, इसके बच्चे किसने पकड़े हैं, किसने परेशान किया है इस माँ को। तो सहाबी ने अपनी झोली खोली, अल्लाह के नबी बड़े प्यारे प्यारे बच्चे थे तो मैंने पकड़ लिए हैं। आपने फरमाया रुद्दू इलैहा वलदा, इसके बच्चे वापस करो। माँ है, तड़प गई अपने बच्चों के लिए। तो माँ वो नहीं होती जो अपने चस्के के लिए बुढ़ापे में भाग जाए, माँ वो है जो अब बच्चों के लिए हर जान कुर्बान कर दे। मैं कह रहा हूं कि जानवरों की माँ वो भी माँ होती है। मुझे एक वाकया याद आ गया अपना, आज से कुछ 10-15 साल पुराना है। सुबह सुबह मैं घर से निकला, गर्मियों के दिन थे, मदरसे जाने के लिए सड़कें उस वक्त अभी खाली थी, फजर के बाद का टाइम। तो एक कुतिया अपने छोटे छोटे बलूंगड़ों के साथ सड़क के ऊपर खेल रही है, अटकेलियां कर रही, लाड कर रही है। मैं दूर से उसको हारन मारा, उसने कोई टेंशन नहीं ली, चल तू कौन है, अभी खेलने पे मां पुत्र तेनू की लगे। मैं जब उसके करीब आया, मैंने फिर हारन मारा थोड़ा सा जोर से, तो वो बच्चे डर के भाग के फुटपाथ पर चढ़ गए और उस मां को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो अद्धा मील मैनू अगा तोड़ छड़ के आई। की कुछ आख्या होना उन्हें, हुण अल्लाह ही जानदा उन्हें की कुछ आख छड़िया होना मैनू कि मेरे बच्चे खेल रहे थे तो तुहानू मौलवी साहब की मसला है। तो मैंने कहा ये कोई ग्राउंड तो नहीं है ना, सड़क है। पर नहीं, माँ ने कहा मैं माँ हूं, तेनू मैं दसांगी, तेनू तू चल हाँ जरा। बड़ी दूर तक वो मेरे साथ मुझे पता नहीं क्या क्या कहती रही और फिर बड़ी मुश्किल से वापस पलटी। तो ये है माँ, इसको माँ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के नबी माँ की अजमत क्या है, माँ की शान क्या है, माँ का मुकाम क्या है। बेटे ने खिदमत करनी है, गालियां नहीं देनी, पत्थर नहीं मारने, डंडे से नहीं मारना। माँ की खिदमत करूं, बहन की करूं, भाई की करूं, किसकी करूं। तो आपने फरमाया तुम्हारा सबसे ज्यादा हकदार लाडली बीवी नहीं है, वो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे भी नहीं है। फरमाया सबसे पहला हकदार तुम्हारा तुम्हारी वालदा है। उसने फिर पूछा सुम्मा आई, अल्लाह के नबी उनके बाद फरमाया सुम्मा उम्मुक, फिर तुम्हारी वालदा ही का हक है। फिर पूछा अल्लाह के नबी फिर किसका, फरमाया सुम्मा उम्मुक, फिर तुम्हारी वालदा ही का हक है। तो ये इतने अजीम हक अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने वालदा को क्यों दिए हैं भला? उस शफकत की बदौलत, उस रहमत की बदौलत जो अल्लाह ने मां के दिल में डाली है। अगर वो मोहब्बत और शफकत ना हो तो हम में से कोई बच्चा बचपन की हद पार ही ना कर सके। वो माएँ शफकत से पालती हैं, तब जाकर हम जवान होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हैं, आपने देखा कि एक औरत काफले के अंदर भाग रही है, कभी इधर कभी उधर, और जहां उसको जो बच्चा मिलता है उसको उठा लेती है, उसको चूमती है, उसको प्यार करती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा इसको क्या हुआ है? कहने लगे अल्लाह के नबी जंग के दौरान इस औरत का अपना बच्चा गुम हो गया है और अब ये दूसरों के बच्चों को चूम रही है, इसको कहते हैं मां। तो आपने फिर एक अजीब सवाल पूछा, फरमाया अतरौना हादिही तारिहतुन वलदहा फिन्नार, मेरे साहबा अगर इसको गुमशुदा बच्चा मिल जाए तो क्या ये जहन्नम में फेंकेगी, आग में फेंक देगी अपने बच्चे को? आपने फरमाया नहीं। साहबा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, जो दूसरों के बच्चों को चूम रही है, इस माँ की शफकत ये कहती है कि इसको अपना बच्चा मिल जाए तो ये कभी दूर नहीं होने देगी। तो आपने फरमाया अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही बिवलदिहा, वो अल्लाह अर्श वाला अपने बंदों पर इससे भी कहीं बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन इस हदीस से पता क्या चला कि माँ माँ ही होती है।
जानवरों की माँ हो, इंसानों की माँ हो, माँ माँ ही है। तो इन माँओं के साथ उसने सलूक करना, अगरचे वो मुसलमान ना भी हों, मुसलमान ना भी हों तो भी। जी हाँ, हज़रत साद बिन अबी वक्कास मुसलमान हो गए, अम्मा ने भुख हड़ताल कर दी। अम्मा कहने लगी तू ये नवा दीन कबूल कर लिया, मैनू वारे च नहीं, जब तक इस दीन का इनकार नहीं करता मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करूंगी, बाईकाट। हर साल सुबह आते अम्मा खा लो कुछ, दोपहर को अम्मा कुछ खा लो। अम्मा कहती है तू सरदार है ना? हाँ जी मैं सरदार तो हूँ अपने कबीले का। तो मैं एवं भुखिया ते आया मर जांगी तो लोग तेन ताने मारनगे, ओ मां का कातल लगा जाता जी, तेन लगेगा पता, बड़े तरले किए, बड़े तरले किए। अम्मा कहती नहीं, जब तक अपने दीन का इनकार नहीं करते तब तक मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं। तो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक गए अम्मा के तरले कर करके, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयतें उतार दी, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना वालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। हमने लोगों इंसानों तुम्हें वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, तुम्हारी वालिदा ने बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं तुम्हारी वजह से। व फिसालु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। अल्लाह कहते हैं बंदो मेरा भी शुक्र अदा करो, वालिदैन का भी शुक्र अदा करो, तुम्हारी वालिदा ने बड़े दुखों के साथ तुम्हें पाला है। तो अगली आयत में अल्लाह ने फिर वजाहत कर दी, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिइल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि मेरे बंदो अगर तुम्हें तुम्हारे वालिदैन शिरक करने का कहें तो शिरक नहीं करना मेरे साथ, अलबत्ता दुनियावी मामलात में वालिदैन के साथ रहो। तो इस आयत के बाद फिर साद ने अम्मा जी से कहा अम्मा अब दीन तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, हुण तेरा दिल करे तो खा लें, दिल करे तो ना खाएं, फिर उन्होंने अल्लाह दी सुपुर्द। तो फिर अम्मा मान गई और अम्मा इस्लाम कबूल कर गई हैं? तो इसको कहते हैं माँ। अगर गैर मुस्लिम भी हो तो उसके साथ भी नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ बर्ताव करना है। और माँ को दुख देना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, मेरे साहबा क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी बता दें। आपने फरमाया जो बंदा अपने वालिदैन को गालियां देता है ये शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। साहबा कराम को समझ नहीं आई कि अल्लाह के नबी को इज्जतदार घराने का फर्द, कोई इज्जतदार मुसलमान, कोई इज्जतदार मर्द, आजाद मर्द अपने वालिदैन को गाली भी दे सकता है। आजकल तो रिवाज है ना, आजकल तो वालिदैन के साथ बात करते वक्त भी दो चार पहला पंजाबी दियां कढ़ के तो फिर रिवाज है गल करन दा। और साहबा कराम को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसे होगा कि जब बाहर किसी से साथ लड़ता है तो उसकी माँ को या उसके बाप को गाली देता है, और वो जवाबन इसको जब इसकी वालिदा को गाली दे या इसके वालिद को गाली दे तो गोया इसने अपने माँ बाप को खुद गाली दी है। तो ये अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के रसूल के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है। और अगर वालिदैन की खिदमत कर लें तो अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देते हैं। वालिदैन उठते बैठते बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, उन दुआओं की बदौलत दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 लोगों का किस्सा बयान किया है जो तूफान के वक्त एक गार में बैठे थे और ऊपर से पत्थर गिरा और गार का दरवाजा बंद हो गया। अब अंदर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब यहां ही मरेंगे, अब बाहर तो निकल नहीं सकते, क्या करें? कहने लगे अपनी अपनी दुआ करो। दुआ करते हैं अपने रब के सामने, अपने नेक अमाल पेश करके शायद छूट जाएं। उनमें से एक ने यही कहा कि अल्लाह मेरे बूढ़े वालिदैन है और मैं बकरियां चराता हूं, रात को जब आता हूं तो दूध लेकर सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूं, बच्चों को बाद में। इस हदीस से यह भी पता चला कि बाहर से पिज्जा लेके आओ तो चुप करके वलेड़ के बीवी के कमरे च नहीं ले जाना। अंबा का मौसम में अंब लियाओ तो काले छापर च पवा के नहीं लिया कि अम्मा नूं पता ना लगे भी अंब आ गए ने घर।
ਫਾਲਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਾਲਸਾ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਜੂਸ बनाना है, अम्मा ਨੂੰ ना पता लगे कन्नो कन। वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मैं अपने वालिदैन को सबसे पहले पिलाता था, बीवी बच्चों को बाद में। एक दिन बकरियां चराते चराते ज्यादा दूर चला गया, रात को लेट पहुंचा तो वालिदैन सो चुके थे। मैं दूध लेकर आया तो अब मैंने वालिदैन को जगाकर उनकी नींद खराब करनी भी मुनासिब नहीं समझी, और दिल इस बात पर भी राजी नहीं हुआ कि वालिदैन से पहले बच्चों को दूं। बच्चे भी भूख से रो रहे हैं, और बच्चे भूख से रोते रोते सो गए और वालिदैन उठे नहीं, और मैं फजर तक 2 टांगों पर प्याला लेकर अपने वालिदैन के सराहने खड़ा रहा कि जब उठेंगे दूध पिलाऊंगा। अल्लाह अगर ये नेकी तेरे यहाँ कबूल है तो अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात दे दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने वो नेकी कबूल की हुई थी, उस गार के रास्ते में से इतना सा सुराख हो गया कि बाहर से रोशनी आनी शुरू हो गई। फिर दूसरे ने दुआ की, फिर तीसरे ने दुआ की तो पत्थर हट गया। वो पत्थर जिसको तीनों अंदर से धक्का लगाते थे तो वो हिलता भी नहीं था, अब दुआ की बदौलत वो पीछे हट गया। तो वालिदैन की खिदमत में पहल करनी चाहिए, और वालिदैन के साथ बदतमीजी, वालिदैन को गालियां देना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल्लाह हर्रम, अल्लाह ने हराम किया है उकूकुल उम्महात व मनअवहात व वअदल बनात। 3 चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम कर दी हैं। माँ की नाफरमानी, माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना, माँ को धमकियां देना, माँ को ओल्ड होम में छोड़ आना। हैरानगी होती है कि माशाल्लाह 3, 4, 5 बेटे हों, बेटियां भी हों, और वालिदैन को संभालने के लिए तू ले जा अपने कोल, मीना तू रखा फिर मैं रखा, वो माँ की वंडियां पड़ जाती हैं। जिन वालिदैन ने इन 8-10 को पाला और कभी नहीं कहा था तू नानी का टोर जा, तू दादे का टोर जा, अब उन 2 बूढ़ों को वंडियां डाली हुई हैं, मां तू रख ले, प्यो असी रख लेने, मैनू हुण महीना हो गया तो हुण तू ले जा अपने घर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह ने हराम की है। वो मनअवहात, और लालच भी अल्लाह ने हराम किया है कि जो कुछ है मुझे दे दो और मैं किसी को आना नहीं दूंगा, और वालिदैन से सब कुछ ले लो और वालिदैन को लुटाने का टाइम आओ तो मेरे को आना भी नहीं आएगा। ववादल बनात, और बेटियों को जिंदा मारना भी मना है, हराम है। जमाना कदीम में तो दफन कर आते थे ना, तो आजकल भी हो रहा कि नहीं? जागते रहना भाइयो, नींदर मैनू भी आउंदी पई है, बाद च सोवांगे जुमे तो बाद। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आज भी बेटियों को दफन करने का रिवाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। मुझे फोन आते हैं जी पिछले बच्चे हाली छोटे ने, अगों औरत फिर प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या इस बच्चे को जाया करा दें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन लाखों बहनों और भाइयों का सोचें जो एक बच्चे के लिए दुआएं कराते हैं, रात दिन दुआएं कराते हैं, और अल्लाह आपको दे रहा है और आप जाया कराने का सोच रहे हैं, और फिर करवा भी देते हैं। पूछते तो इसलिए हैं कि चलो मौलवी तो पै जाए, मौलवी आके हाँ तो सारा गुनाह मौलवी ने होगा, तो करवा फिर भी होना। मौलवी ने आख्या भी नहीं हलाल, जायज़ नहीं है, फिर भी कराओ दिन। और अस्पताल वाले भी अपनी फीस खरी करते हैं, फीस लेकर सारा जुल्म कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटियों को मारना ये भी हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताएं कि अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ना। साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी नमाज के बाद? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन की खिदमत करना ये अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल है। अल्लाह हम सब को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन की खिदमत करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना प्यारा सा हुक्म है। आपने फरमाया तअल्लमू मिनल अंसाब, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बि अरहमकुम। अपनी वालदा के साथ हुस्ने सलूक करने के लिए अपना नसबनामा सीखो, माँ की तरफ से कहाँ तक जाता है। आज मेरा गल सानू अक्सरीयत नू नाने तक दा ही पता होएगा, पड़नाने का भी कोई नहीं पता होना। पड़नाने की औलाद किथे किथे वे, किसी शायद कोई एक बंदा हो जिन्होंने पता हो कि मेरे पड़नाने की औलाद फलानी जगह दे।
दादे तक जाओगे तो पड़तादे की औलाद कितने वे कख नहीं पता होना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सिला रहमी करनी है तो अपना नसब नामा सीखो, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। और अगर वालदा दुनिया से टुर जाए तो फिर क्या करें? साहबी रसूल आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से बड़ा गुनाह हो गया है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अल्लाह से क्या करूँ? आपने फरमाया तुम्हारी वालदा है? कहने लगे नहीं जी वालदा तो फौत हो गई। आपने फरमाया खाला है? कहने लगे जी हाँ खाला है। आपने फरमाया फबिर रहा, जाओ वालदा खाला की जगह पर खाला की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो खाला भी माँ की जगह पर होती है, खाला की खिदमत करने से भी अल्लाह गुनाहों की माफ़ी देता है। और इस सिला रहमी के 3 फायदे हैं। आपने नसब नामे को सीखो, खाला के साथ, खाला के बच्चों के साथ मोहब्बत शफकत रखो, अपने रिश्तेदारों को पहचानो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोहब्बतुन फिल अहल, पहला फायदा ये होगा कि खानदान में मोहब्बत बढ़ेगी। वह मसरातुन फिल माल, अल्लाह माल में बरकत दे देगा। वह मनसातुन फिल असर, और अल्लाह उम्र भी इजाफा कर देगा, उम्र भी लंबी कर देगा। तो 3 फायदे लेने हैं तो वालदैन के साथ उसने सलूक, और उनके आगे जितने खानदान है, चचा है, ताया है, खाला है, मामू है, उनके साथ सिला रहमी करें। और अगर आपने रिश्तेदारी तोड़ी जबकि हम तोड़ रहे हैं, मना नहीं ऐसी होंगे, जितने मर्जी जुमे पढ़ लो, जितनी मर्जी तकरीरें सुन लो, फायदा तब ही होना है जब हम अमल करेंगे। आप डॉक्टर से महंगी तरीन दवाई ले लें, है जी दुबई जो टीके आए ने, लंदन जो टीके मंगवाए ने, और अगर वो टीके आप घर पे ही रख दें, लगवाएं ना, फायदा हो जाएगा, मरीज बच जाएगा। दवाई खाएंगे तो फायदा होगा, इसी तरह सिला रहमी करोगे तो फायदा होगा। और अगर सिला रहमी नहीं की तो फिर हमें खदशा है कि कारोबार बड़ा करने हैं, बरकत कोई नहीं, माल में बरकत कोई नहीं, घर में हर वक्त चख चख हो रही है, कोई सुकून नहीं है। कैसे मिलेगा सुकून? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह ने रिश्तेदारी को पैदा किया तो रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के साथ चिमट गई। कहने लगी अल्लाह ने उसको भी जुबान दी बोलने की। कहने लगी अल्लाह मुझे डर है कि मुझे तू दुनिया में भेजेगा तो लोग मुझे तोड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिन उसको गारंटी दी कि ऐ रिश्तेदारी, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत के साथ जोड़ लूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से महरूम कर दूंगा। तो अल्लाह की रहमत लेनी है तो वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह ताला हम सब को वालदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक दे। माँ की दुआ जन्नत की वाह, ये हम कभी पढ़ा करते थे, गाड़ियों के पीछे लिखा होता था, स्कूल की दीवारों पर लिखा होता था, माँ की दुआ जन्नत की वाह। और अगर माँ दे दे बद दुआ तो फिर जी माँ दी नहीं लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, एक इलाके में एक बुजुर्ग थे जिसका नाम था जुरैज, बड़ा इबादत गुजार, इतनी इबादत करता था कि बिल आखिर इलाका छोड़ के तो बाहर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली कि शहर में लोग इबादत नहीं करने देते टका के। अब वो सूफी साहब माँ है एक बूढ़ी शहर में, उसको मिलने नहीं आता। माँ का दिल उदास हुआ तो माँ मिलने के लिए गई, जाके आवाज मारी जुरैज पुत्र मैं तेरी माँ मिलने आई हूं। और सूफी साहब अंदर नफल नीते हुए हैं। कहने लगा एक तरफ अल्लाह की इबादत है, एक तरफ माँ आवाजा मारी जाती है, चलो माँ नूं तो हुण बाद च मिल लांगा, वेला हो गए। माँ आवाजे मार मार के बेचारी चली गई। दूसरी बार फिर आई, जुरैज पुत्र मैनू मिल ला, मैं सिर्फ मिलनी आई हाँ तेनू। और जुरैज फिर इबादत में मसरूफ है, कहता नहीं अभी टाइम नहीं है, फिर मिल लूंगा। तीसरी बार माँ फिर आई मिलने के लिए, जुरैज पुत्र मिल ला, मैं सिर्फ मिलने के लिए आई। और सूफी साहब ने फिर 100 रकत नफल नहीं थे, नहीं मिलता। बिल आखिर दुखी मां की दिल से बद दुआ निकल गई। कहती अल्लाह इस सूफी को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये किसी बदकार का मुंह ना देख ले, यानी किसी रंडी का मुंह देख ले, ये दुनिया में जलील हो जाए, खार हो जाए, उस वक्त तक इसको मौत नहीं देना।
आप सूफी साहब के चर्चे हो गए कि सूफी साहब तो इतनी इबादत करते हैं कि सगी मां को भी नहीं मिलते। तो शहर की एक अदाकारा रंडी, उसने कहा लो मेरे जलवे देख के बड़े बड़े सूफी पिघल जाते हैं, एक ही शह। लोगों ने शर्त लगा ली कि तू सूफी को मुतवज्जो करके वहा। वो कहती ले फिर देखो तुसी हुण मैं करनी की है। वो बन ठान कर गई और सूफी जुराज को जाकर आवाज मारी कि सूफी मैं शहर की फलां अदाकारा आई हूं तुम्हें मिलने, जिसको मुलाकात के लिए लोग टाइम लेते हैं, तरसते हैं, मैं खुद आई हूं। अब जो सूफी अल्लाह की इबादत करते हुए मां को नहीं मिलता वो इसको क्या मिलेगा। उसने कहा दफा दूर। उसको गुस्सा आया, उसने जंगल में एक चरवाहे के साथ मुंह काला किया और शहर में जाके शोर मचा दिया कि मैं सूफी के साथ मुंह काला कर आई हूं। लोग इंतजार में थे कि चलो देखते हैं क्या होता है। साल बाद बच्चा पैदा हुआ तो शोर मच गया, लो सूफी उंज इबादत करदा ते काम वेखो। लोग दौड़े, सूफी को मार मार के धूं निकाल दिया, चौंपड़ी तोड़ दी, गले में पटा डाला और खींच कर ले आए शहर में बादशाह के पास के बादशाह सलामत देखो सूफी साहब का किए। और लोग छतों के ऊपर खड़े देख रहे हैं मंजर कि ये है वो सूफी जो इबादत में मशहूर था, आज इसका हाल क्या हुआ है। और सूफी उनको इस तरफ देखता और हंसता है। बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह सलामत ये मकाम तो रोंद है, इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी इसने मार खाई है, लेकिन ये हंस रहा है। बादशाह ने पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो, ये वक्त हंसने का तो नहीं रोने का है। वो कहने लगा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि ये सारी दुनिया जो मुझे देख रही है वो समझ रही है कि मुझे उस बदकारी की वजह से मार पड़ी है, और मुझे पता है कि नहीं मुझे मेरी मां की बद्दुआ लग गई है। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये तो पागल ने। बादशाह थोड़ा सा ठिठका कि फिर वो बच्चा तेरा नहीं, उसको नहीं मेरा नहीं है, बच्चे को लाओ। अब अल्लाह के साथ ताल्लुक इतना था, सूफी ने 2 नफल पढ़े और बच्चे के पेट पर हाथ फेरा, और बच्चा जो 20 साल का भी नहीं है, बस पैदा ही हुआ है। उसको पूछा तेरा बाप कौन है, तो उसने कहा मेरा बाप फलां चरवाहा है। अब लोग गिरने लगे पैरों में, तरले मिन्नते सूफी साहब की कि सूफी साहब माफ कर दो, असी तुहाडी झोंपड़ी सोने दी बना देने, असी चांदी दी बना देने। नहीं उस तरह मिट्टी दी बना दिओ, मैनू सजा मेरी मां दी खिदमत ना करन दी मिली। तो इसलिए ये मत समझे कि मैं तो हज करके आया हूं, मैनू मां की जरूरत, मैं तो तहज्जुदगार हूं, मुझे वालदा की खिदमत की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं तो सदका खैरात ही बड़ा करता हूं, मुझे वालदैन की क्या परवाह है। वालदैन की खिदमत इन तमाम इबादतों से अफजल और आला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको वालदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। काबिल एहतराम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, वालदैन दुनिया में मौजूद हों तो उनकी खिदमत करके जन्नत ले लें, और अगर वह दुनिया से चले जाएं तो एक साहबी ने आकर पूछा अल्लाह के नबी कि मेरे वालदैन दुनिया से चले गए हैं तो क्या मैं उनके साथ अब भी कोई नेकी कर सकता हूँ, वालदैन के साथ उसने सलूक अब कैसे करूँ। तो आपने फरमाया अस्सलातु अलैहिमा, पहला काम जब वो फौत हों तो उनकी नमाज जनाजा का अहतमाम करो, वस्तिग़फ़ार लहुमा, और उनके लिए हमेशा सारी ज़िंदगी बख्शिश की दुआएं करते रहें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा व इन्फ़ाज़ अहदिहिमा, और अगर आपके वालिदैन किसी बहन से, किसी भाई से, किसी चचा से, किसी दोस्त से
کوئی وعدہ کر گئے تھے تو کوشش کرو اس وعدے کو پورا کرو، اگر وہ قرض چھوڑ گیا تو قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرو۔ وصلۃ الرحم، اور والدین کے رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِ، والدہ کی سہیلیاں اور والد کے دوست ان کی بھی خدمت کرو، یہ ہے والدین کے جانے کے بعد ان کا حق۔ اور ایک صحابیہ نے آ کر پوچھا، اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے فرضی روزے رہتے ہیں، کیا میں والدہ کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ہے، اگر دنیا میں کسی بندے کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتی؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے ضرور کرتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ ایک دوسری صحابیہ نے پوچھا، اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، حج نہیں کر سکی، کیا میں والدہ کی طرف سے حج کروں تو میری والدہ کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو والدہ کی طرف سے حج کرو۔ تو یہ ہیں وہ نیکیاں جو آپ والدین کے جانے کے بعد بھی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین تیرے پاس آ گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، یا رب العالمین جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، یا رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔